બહેનોની જિંદગીમાં. અને એક આપણે વિચારીએ તો 2 પિંક લાઇન્સથી 3-3.5 કિલોનું બાળક આવે. સો ઇટ્સ સચ અ મિરાકલ ઇન અ ફિમેલ બોડી. અને આ પ્રેગ્નન્સી ઇઝ એ સમયે આપણા મનમાં બહુ બધા પ્રશ્નો હોય છે જે ઘણા બધા લોકો મને કન્સલ્ટિંગ રૂમમાં પૂછતા હોય છે. બટ દેર આર સો મેની ઇશ્યુઝ જે કદાચ 10 મિનિટ 15 મિનિટના કન્સલ્ટિંગ રૂમમાં આન્સર અમે નથી કરી શકતા. સો ધીસ ઇઝ અ સ્ટેપ સો દેટ વી કેન આન્સર યોર ક્વેશ્ચન્સ. પ્રેગ્નન્સીમાં દેર આર લોટ ઓફ અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ. ઘણી વખતે ઇટ ઇઝ ફ્રોટ વિથ નોશિયા, વોમિટિંગ, કેટલા બધા ટેન્શન્સ હોય અને એપ્રિહેન્શન, સ્પેશિયલી ફોર અ ફર્સ્ટ પ્રેગ્નન્સી જ્યારે થતી હોય છે. અને એટલા બધા બોમ્બાર્ડિંગ આપણને મળે, કોઈને પણ મળીએ ને કે ના પ્રેગ્નન્સીમાં આવું કરવું જોઈએ, આવું ના કરો. ઇનલોઝ હોય, મધર ઇન લો હોય, ફ્રેન્ડ્સ હોય, બીજા પેશન્ટ્સ હોય. સો ધીસ ઇઝ આર એફર્ટ ટુ ગીવ યુ અ સાયન્ટિફિક નોલેજ. સ્પેશિયલી અત્યારે ગર્ભ સંસ્કાર માટે ઘણા બધા લોકો અમને પ્રશ્ન પૂછતા હોય છે. તો this we are trying to give you a fruitful session જ્યાં સાયન્ટિફિક ગર્ભ સંસ્કાર આવે અને સાથે સાથે we can have some playful moments. We also have a photo shoot outside which you can take help of. Let me introduce Sangeeta Patel. She is the founder of Kala Surya Foundation and trustee. And believe me, તમને એમને જોઈને નહીં લાગશે, એ સરસ ડાન્સર છે. શી ઇઝ અ ફિટનેસ ટ્રેનર. શી ઇઝ ડુઈંગ લોટ ઓફ સોશિયલ એક્ટિવિટીઝ બેટીઓ, ગર્લ ચાઇલ્ડ માટે અને ફોર ઓલ્ડ એજ પીપલ. શી ઇઝ બેઝડ ઇન ભોપાલ ઓનલી, કલા સૂર્ય ફાઉન્ડેશન. અને ઘણા બધા શી ઇઝ ટ્રેનિંગ લોટ ઓફ ડાન્સર્સ અને શી ઇઝ એન એક્સલન્ટ કોચ ફોર ગર્ભ સંસ્કાર. સો નાઉ શી કેરી ફોરવર્ડ ધ સેશન. Thank you. માસ્ક વગર રહીશ થોડા પણ વાંધો લીધું છે. आप બધા आप सब गुजराती हिंदी क्या प्रीफर करेंगे? आप गुजराती બધા ગુજરાતી છે? ઓકે. એકચ્યુઅલી ગર્ભ સંસ્કાર શું છે તો બધાને એવું છે કે ગર્ભ સંસ્કાર એટલે ગર્ભની અંદર અપાતા સંસ્કાર. એકચ્યુઅલી ગર્ભ સંસ્કાર એટલે એવું છે કે જ્યારે આપણે ગર્ભ ધારણ કરવાનું નક્કી કરીએ છીએ એ મુમેન્ટથી ગર્ભ સંસ્કાર સ્ટાર્ટ થાય છે. હવે અત્યારે હાલની જે ફાસ્ટ લાઈફ છે ને એની અંદર બધા શું કરે છે કે બેબી કન્સીવ થઈ ગયું એના પછી ડૉક્ટર કન્સલ્ટ કર્યા, બધું પતી ગયું પછી ક્યાંકથી એમને એવું લાગે કે હવે આપણે કંઈક નવું કરીએ અથવા બાળક માટે કંઈક કરવું છે. કારણ કે પોતાના માટે કોઈએ નથી કરવું, બાળક માટે જ બધું કરવું હોય છે. ત્યારે આપણને એ શબ્દ ગર્ભ સંસ્કાર એ બહુ આમ ડિઝાઇનર શબ્દ લાગે છે એટલે આપણે એને ફોલો કરવાનો ટ્રાય કરીએ છીએ અને પછી આપણે ગર્ભ સંસ્કાર શું છે જાણવાની કોશિશ કરીએ છીએ. એકચ્યુઅલી એવું છે કે જે આપણા શાસ્ત્રોમાં લખેલું છે કે ગર્ભ સંસ્કાર જે બાળકને જન્મ આપવાનો હોય તો આપણે પહેલાં બાળકને જન્મ આપવો છે, થોટ ક્રિએટ કરવો પડે. એના માટે જે ઘર આપણે એને બાળકને જે ઘરની અંદર લાવવાના છીએ, જ્યાં એને જન્મ આપતા પહેલાં રાખવાના છીએ 9 મહિના, એને તૈયાર કરવું પડે. પછી આપણે એને કન્સીવ કરી શકીએ. એના પછી આપણે આપણામાં એ બધા જ બદલાવ લાવવા પડે જે આપણે આપણા બાળકમાં ઈચ્છીએ છીએ. એવું નથી કે આપણે આપણા બાળકને કહું કે હવે તું શાંત થઈ જા, તું સાયન્ટિસ્ટ બનીશ, તું ડૉક્ટર બનીશ, તું આમ કરીશ તો એ બની જશે, એવું નથી. એને તમારે જે વસ્તુ કરાવી છે એ દરેક વસ્તુ તમારે કરવી પડશે, તમારે જીવવી પડશે. ખાલી એવું નથી આપણે એવું વિચારીએ કે તમારા બાળકને તમારે એકદમ શાંત બનાવવો છે અને એકદમ કોઈ પણ વસ્તુ જોઈને તરત શીખી જાય એવો બનાવવો છે, ફાસ્ટ ફૂડથી દૂર રહેતો બનાવવો છે, મોબાઈલથી દૂર રહેતો બનાવવો છે અને બધા જ ગ્રંથો એ વાંચે એવું કરવું છે. તો પહેલાં શું કરવું પડશે? તો એ બધી જ વસ્તુ તમારે જીવવી પડશે, એ પણ દિલથી. પછી તમારે કશું જ કર્યા વગર તમારું બાળક કરવા લાગશે. એટલે ગર્ભ સંસ્કાર એકચ્યુઅલી એ છે કે તમે જે દિવસે નક્કી કર્યું કે મારે બાળકને જન્મ આપવો છે એ દિવસે તમારા બોડીને, તમે તમારા મગજને, તમારી જાતને તમે ટ્રેનિંગ આપવાની શરૂ કરો. ને નહીં કે ખાલી મધર અને ફાધર બંને, આમ તો આખા ફેમિલીનો રોલ હોય છે પણ મધર અને ફાધરનો ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ હોય છે. પછી તમે બાળકને કન્સીવ કરવા માટે જેમ આપણે મુહૂર્ત જોઈએ છીએ તો એમાં મુહૂર્ત એટલે એ મુહૂર્તનો મતલબ એ છે કે માતા અને પિતા જ્યારે એવું સમજે કે હવે અમે બંને જણા મેન્ટલી એકદમ પ્રિપેર થઈ ગયા છે ત્યારે તમે બાળકને લાવવા માટે
પ્લાનિંગ કરી અને પછી બાળકને કન્સીવ કરવાનો પ્રયત્ન કરી શકો અને એ રીતે તમે બાળકને કન્સીવ કરો છો. બાળકને કન્સીવ કર્યા પછી જ્યારે તમે એના માટે જે કે ફર્સ્ટ મંથથી લઈ અને 9મા મહિના સુધીનો જે ગાળો છે તો એવું કહેવાય છે કે એની અંદર જ આખું તમે જે પણ વિચારો છો એ દરેક વસ્તુ તમારા બાળકની અંદર આવતી જાય છે. તમે ઇમોશનલી બ્રેકડાઉનમાં છો કે તમે કોઈ પ્રોપર ભોજન નથી લેતા અથવા તમારા ફેમિલીની અંદર કોઈ એવા ઇશ્યુઝ ચાલે તો તમારી પર્સનલ લાઈફમાં કોઈ મોટી સ્ટ્રગલ આવી ગઈ, કોઈ ફાઇનાન્શિયલ ઇશ્યુઝમાંથી તમે પસાર થઈ રહ્યા છો, એ દરેક વસ્તુ જે તમે ફીલ કરી એવું જે બાળક આવશે. પછી તમે બાળકને જ્યારે જન્મ આપી દો છો, આપણે એવું સમજીએ છીએ કે જન્મ આપી દીધા પછી ત્યાં સુધીનો રોલ હોય છે ગર્ભ સંસ્કારનો. એવું નથી. બાળક 4 વર્ષનું થાય, જન્મ પછી બાળક 4 વર્ષનું થાય ત્યાં સુધી ગર્ભ સંસ્કારનો રોલ હોય છે. એટલે ગર્ભ એ તો માત્ર નામ છે કે જ્યાં બાળકને આપણે 9 મહિના રાખીએ છીએ. બાકી ગર્ભ સંસ્કાર એટલે જન્મ પહેલાના 2 વર્ષ. કેમ 2 વર્ષ? કારણ કે હું આજે તમને એમ કહીશ કે તમારે ગુસ્સો નથી કરવાનો તો તમે અચાનક તમારી અંદર હેબિટ ડેવલપ નહીં કરી શકો. ઘણા લોકો 6 મહિના, ઘણા લોકોને વર્ષ લાગશે, ઘણા લોકોને 2-3 વર્ષ થઈ જશે. પણ 2 વર્ષનો સમય આઈડિયલ હોય છે કે જેમાં તમે ભોજનની, વિચારવાની અને રહેવાની તમારી રીતભાત બદલી કાઢો અને એના પછી તમે બાળક લાવો એટલે તમારે ગર્ભ સંસ્કારની અંદર કશું જ કરવું ના પડે કારણ કે ઓલરેડી 2 વર્ષની અંદર તમે તૈયાર થઈ ગયા. હવે જ્યારે બાળક 4 વર્ષનું થાય છે ત્યાં સુધીમાં એનો મેક્સિમમ ગ્રોથ થઈ જતો હોય છે. પછી એની અંદર તમે 4 વર્ષ પછી કંઈ પણ કરો ને તો એ એડિશનલ વસ્તુઓ કંઈ પણ એની એટલી બધી ઇફેક્ટ નહીં થાય. એટલે તમારે જો ઇફેક્ટિવ વે પર બાળકને પહેલેથી જ બહુ સારું, એટલે એક દેશ માટે તમે કંઈક કરવા માંગો છો, આ સમાજ માટે કંઈક કરવા માંગો છો, તો તમારે એ મગજમાં રાખવું જોઈએ કે જે પણ બાળકને તમે જન્મ આપી રહ્યા છો એ તમે તમારી સોસાયટી માટે કંઈક તમારું યોગદાન આપવા જઈ રહ્યા છો, એક સારો નાગરિક આપવા માટે. તો એ રીતે જો તમે કરશો ને તો એ બાળકની અંદર તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકીશું. હવે ગર્ભ સંસ્કારની અંદર ફર્સ્ટ સ્ટેપ તો અહીંયા તમે વાંચી શકો છો, હાઉ ટુ પ્રોડ્યુસ ડિઝાઇનર બેબી. ડિઝાઇનર બેબી એટલે તમે જેવી રીતનું બાળક ઈચ્છો છો એવું બાળક તમે પેદા કેવી રીતે કરી શકો. આમ જનરલી ડિઝાઇનર બેબી એટલે આખો મિનિંગ અલગ થાય, પણ આપણે જે સેન્સમાં લેવાના છે ડિઝાઇનર બેબી તમારા ખ્યાલો, તમારા વિચારો પ્રમાણેનું ડિઝાઇન કરેલું બેબી. મોડર્ન શબ્દ છે કારણ કે આપણે મોડર્ન લાઈફમાં છીએ તો આ વસ્તુને આપણે જલ્દી કનેક્ટ કરી શકીશું. તો એમાં ફર્સ્ટ છે રાઇટ ડાઉન યોર ડિઝાયર્સ એન્ડ ક્વોલિટીઝ ધેટ યુ વુડ લાઇક ટુ હેવ ઇન યોર બેબીઝ. બરાબર? જેમ કે અત્યારે આપણે ગર્ભ સંસ્કારનું સેમિનાર રાખેલો છે કે એક્ટિવિટી રાખી છે, તમે બધા અટેન્ડ કરવા આવ્યા છો, પણ તમારી પાસે અત્યારે નોટપેન નથી. રાઈટ? ઇટ મીન્સ તમે ખાલી સાંભળવા આવ્યા છો, તમે લોકો સિરિયસ વે પણ નથી આવ્યા કે નવું જાણવા મળશે. ઓકે, આ માઇન્ડસેટ છે. બીજો માઇન્ડસેટ એવો હોય કે આપણી પાસે મોબાઈલ છે, આપણે રેકોર્ડિંગ કરી લઈશું, વિડીયો જોઈ લઈશું, લાવતા. એક સિમ્પલ વસ્તુ છે, જે વસ્તુ તમે અત્યારે વિચારીને એ જ વસ્તુ તમારું બેબી આવશે ત્યારે પણ એ જ કરશે. ત્યારે તમે કહેશો કે તમે નોટપેન લો તો એ નહીં લે, એ સિરિયસ વે પણ નહીં લે. એકચ્યુઅલી શું છે કે આપણી જોડે આપણે અત્યારથી નોટ અને પેન જોડે રાખવી જોઈએ. ક્યારે આપણને ક્યાંથી શું શીખવા મળે છે વી ડોન્ટ. તો એના માટે એ ડિસિપ્લિન વે પર આપણા મગજને તૈયાર કરવાની એક રીત છે કે પેન અને પેપર. મોબાઈલની અંદર તમે કંઈ પણ લખશો તો પણ, કે કોઈ વિડીયો રેકોર્ડ કરશો, કોઈ મેસેજ ટાઈપ કરશો, એ તમારા મગજમાં નહીં બેસે. પણ જો તમે પેન અને પેપર લઈને લખશો તો એ એકદમ તમારા મગજની અંદર બેસી જશે. અને એ તમે હવે ટ્રાય કરજો, તમને ખબર પડશે. ધીસ ઇઝ ધ રીઝન કે જ્યારે પણ આપણે કોઈ પણ વસ્તુ લર્ન કરવાની હોય ને તો આપણે જ્યારે બોલી લઈએ ને, જ્યારે લખવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ ને ત્યારે ઘણી બધી વસ્તુઓ ભૂલાઈ જાય. એટલે જો લખીને વસ્તુને તૈયાર કરી હોય તો આપણા મગજની અંદર એવી રીતે બેસી જાય કે જ્યારે આપણે વિચારતા હોય, વર્ષો પછી વિચારતા હોય ને તો એ લખેલું પેજ આપણને દેખાય કે 4th લાઇનમાં મેં આ લખ્યું હતું, લાસ્ટ પેજ ઉપર મેં આ લખ્યું હતું. તો આપણે બને એટલી પ્રેક્ટિસ રાઇટિંગમાં કરવાની. બીજી વસ્તુ કે આની અંદર આપણે એ લખ્યું છે કે રાઇટ ડાઉન યોર ડિઝાયર્સ એન્ડ ક્વોલિટીઝ. તમે લખ્યું એટલે શું થયું કે તમે લખશો ને એટલે 4 વસ્તુ લખીને તો મને 5મી વસ્તુ યાદ આવી, મને 6ઠ્ઠી વસ્તુ યાદ આવી. તમે એની અંદર એડ ઓન કરતા જઈ શકો અને તમે જેટલી વખતે પેપર જોશો તો એને વાંચશો એટલે તમને એ તમારા મગજમાં થશે કે મને આવું બાળક જોઈએ છે, મને આવું બાળક જોઈએ છે. ઓકે, તો હવે શું કરવાનું છે કે આ લખ્યા પછી તમારા માઇન્ડમાં કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થયો કે તમારે કેવું બાળક જોઈએ છે. ટ્રાય ટુ બી ધ સેમ. એટલે મેં તમને પહેલાં જ કહ્યું કે તમે જે ઈચ્છો છો એ તમારે બનવું પડશે, એ તમારે જીવવું પડશે. તમે ઈચ્છો છો કે તમારું બેબી પંક્ચ્યુઅલ બને તો ડે 1 થી આજથી તમે વિચાર્યું ને તો આજથી તમે દરેક વસ્તુમાં પંક્ચ્યુઅલિટી લાવો.
એટલે પંક્ચ્યુઅલિટી કોઈ જગ્યાએ જવું ટાઈમથી પહોંચવું એ નથી. પંક્ચ્યુઅલિટી મીન્સ તમે એવું નક્કી કર્યું કે મારે સવારે 6 વાગે ઉઠવાનું છે, તો 6 વાગે ઉઠવાનું છે. તો એના માટે શું કરવું પડશે? તો એના માટે તમારે રાત્રે વહેલા સૂવું પડશે. પછી એના સિવાય બીજું શું કરવું પડશે? બને એટલું સ્ટ્રેસથી દૂર રહેવું પડશે. પાણી ઓછું પીવું પડશે. કારણ કે તમે જો રાત્રે 10 વાગે સૂવાના હો અને તમે 10 વાગે સૂતા પહેલાં જ જસ્ટ 1 બોટલ પાણી પી જશો અથવા 3-4 ગ્લાસ પાણી પી જશો તો શું થશે? તો તમારે વારે વારે યુરિન માટે ઊભા થવું પડશે અને તમારી ઊંઘ ડિસ્ટર્બ થશે. રાઈટ? सॉरी हिंदी में हिंदी ओके शी इज ओके नो प्रॉब्लम फाइन. हम हिंदी में कंटिन्यू करते हैं. आपको विजन में कोई प्रॉब्लम हो रही है मैम? आप इधर आ जाइए ना. आप सब हिंदी समझ सकेंगे? आपकी जो डिजायर्स है, जैसा बेबी आप चाहते हो पहले आपको पेपर पे लिखना है ताकि वो एक एग्जीक्यूट हो जाए कि हमें यही चाहिए. और ये आप जितनी बार देखोगे आपके माइंड में वो चीज़ रहेगी. जो चीज़ आप देखते रहोगे, जो आपके माइंड में चलती रहेगी, वो आपको मिलेगी. इसीलिए ड्रीम्स को लिखने के लिए बोला गया है. सेम वे इन बेबी. फिर जो भी ड्रीम्स आपने लिखे है वैसा बनना है. जैसे आपको पंक्चुअल बनना है तो आपको पंक्चुअल बनना सीखना है. अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो रात को जल्दी सोना पड़ेगा. पर सोने के लिए आपको और क्या क्या करना पड़ेगा? तो जैसे आपने कम पानी पिया, 9 बजे से पानी पीना थोड़ा कम कर दिया, तो 10 बजे आप सोएंगे तो फिर बीच में आपको उठना नहीं पड़ेगा. फिर और क्या करना होता है? तो सोने से पहले दिमाग में से जो कचरा है उसको निकाल के सोना पड़ेगा. अगर हम रात को हमारी जनरल आदत क्या होती है कि हम मैसेजेस देखते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, नींद नहीं आ रही है, कोई मूवी देख रहे हैं, उसमें जो कुछ भी चल रहा है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कॉपी हो रहा है. ये सब जानते हैं, सबको पता है क्योंकि सबने काफ़ी सीरियल्स देखी है, काफ़ी लेक्चर सुने हुए, काफ़ी बुक्स पढ़ी है, पर इम्प्लीमेंट कोई नहीं कर पाता क्योंकि लाइफ में हमने उसको सीरियस वे पे लिया ही नहीं. तो जो सबकॉन्शियस माइंड में लास्ट थॉट होगा और आप सो गए, वो चीज़ आप सुबह उठोगे तो वो सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात वो आपके दिमाग में चला है. आपको अगर कोई गलती से ऐसा डर आ गया कि मेरे बेबी को कुछ हो गया तो उसको वो अच्छा उसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम होगी, तो अगर उसमें मतलब मेरे बेबी नीचे आ गया तो मुझे सिजेरियन हो गया तो मुझे और कोई प्रॉब्लम हेल्थ इश्यूज हो गए, तो जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो आपके मुझे कोरोना हो गया तो मेरे बेबी को कुछ हो गया, तो ये थॉट चला और आप सो गए. पूरी रात ये थॉट चलेगा. अब जो थॉट आप बार बार करते हो वो चीज़ अट्रैक्ट होकर आपके पास आती है. तो जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उसको सोचने का ही नहीं. तो इसके लिए जब भी आप सोते हो तो अपना दिमाग खाली करके सोना है. खाली करने के लिए क्या होता है? तो आपको क्या चाहिए उसको सोचना है. दिमाग एक बंदर होता है, अगर आपने दिमाग को बोला कि ये नहीं सोचना है तो पक्का वही सोचेगा. तो आपको उसको ये बोलना ही नहीं है. आपको क्या करना है? मेडिटेशन करना है. मेडिटेशन क्या होता है? आपको ध्यान लगाना है. कौन सी चीज़ पे? जो आपको चाहिए. हमें शांति चाहिए. शांति कहाँ से मिलेगी? गॉड के पास. भगवान कौन है? सबके लिए अलग अलग है. आप जिस भगवान में मानते हो उसको विजुअलाइज करो और उसके पास से शांति लेनी है. वो मेडिटेशन हुआ. जब हम शांति ले रहे हैं तो बहुत सारे विचार और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें विचलित करती है. तो उस वक्त क्या करना है? मैं एक तरीका बता रही हूँ, आप उसको फॉलो करने का ट्राई कर सकते हो क्योंकि यही फर्स्ट स्टेप है आपको, आपके बेबी को, आपके परिवार को. सिर्फ ये आपकी ये जो जर्नी है प्रेगनेंसी की उसमें तो आपको हेल्प करेगा, उसके बाद भी आपको हेल्प करेगा आपकी पर्सनल लाइफ के लिए. आप जब भी बैठे मेडिटेशन में भगवान को याद कर रहे हो और अगर आपको कोई दिमाग में कोई भी ख्याल आता है जो नहीं आना चाहिए उसको आने दो और जाने दो. उस पर फोकस मत करो, पर फोकस किस पे करो? जो आपको चाहिए. जैसे मुझे शांत रहना है, मुझे खुश रहना है, मुझे हेल्दी रहना है. आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम एनर्जेटिक. ये 3 चीज़ें सबको चाहिए. तो हमें कोई मंत्र नहीं बोलना, यही मंत्र है. तो ये मंत्र हमें बोलते रहना है. बस आंखें बंद करो, भगवान सामने बैठे हैं, वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो हमें आशीर्वाद मिल रहा है. आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम एनर्जेटिक. आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम एनर्जेटिक. आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में आप वो चीज़ बोलते रहो. फिर आपको लगे कि मुझे नींद आ रही है, आप सोचो. आप सोते सोते आपको ऐसा कई बार होता है, हम बहुत डिस्टर्ब होते हैं, कहीं पेन हो रहा है तो हमें नींद नहीं आती, तो हमको क्या करना है? दिमाग आंखें बंद कर देनी है, हम सो ही गए. ऐसा नहीं सोचते कि मुझे नींद नहीं आ रही है. आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम एनर्जेटिक. बस यही बोलते रहना है. दिमाग को एक काम दे दो. वो बंदर को कोई काम दे दिया, खंबा चढ़ना है उतरना है, चढ़ना है उतरना है, तो वो और किसी चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करेगा. तो सेम दिमाग को आप ये मंत्र दे दो, ये बोलता रहेगा. अल्टीमेटली क्या होगा? जब आप सोओगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये थॉट पूरी रात चलेगा एंड फिर आपकी ये हैबिट हो जाएगी कि आप ड्यूरिंग डे भी कहीं भी बैठे हुए हो ना तो आप हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम एनर्जेटिक चलेगा.
और फिर वही चीज़ आपके साथ होगी, क्योंकि वही चीज़ अट्रैक्ट होके आएगी। तो ये इतना छोटा 2 सेंटेंस है, यही गर्भ संस्कार है। कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, पर ये इतना डिफिकल्ट है कि हमें इसको फॉलो करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट स्टेप, वर्क ऑन योर बिहेवियर एंड एटीट्यूड। बिहेवियर एंड एटीट्यूड वो तो इतने सालों का है, कैसे चेंज करेंगे? तो हमें, क्योंकि अब जब जगह है तब से ही सवेरा है, तो आज अभी से आपको ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। आपका कौन सा मंथ चल रहा है? फोर्थ। आपका 7th week. 7 week. 7th वीक। ओके, फोर्थ। अब 5। अब सॉरी। ओके, तो ये 4th मंथ है। एक्चुअली 4th मंथ तक बेबी का ऑलमोस्ट जो ग्रोथ होता है वो हो गया होता है, बट स्टिल अभी हमको बच्चा 4 साल का होगा पैदा होने के बाद, तब तक ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि 4 साल के बाद आपको बच्चे को कुछ नहीं बोलना है। तो 4 साल का हो तब तक पूरा ध्यान लगा दो, बिना बोले उसको सिखा दो। तो वर्क ऑन योर बिहेवियर एंड एटीट्यूड। क्या? तो वर्क ऑन योर माइंड। सबसे पहला दिमाग पे काम करना है। कैसे? तो अभी मैंने आपको वही चीज़ बता दी। दिमाग को एक बंदर कंसीडर करो, उसको जो ना बोलोगे वो करेगा, जो बोलोगे वो नहीं करेगा। तो कोई चीज़ में मना करना ही नहीं है, तो सीधा करना शुरू कर दो। पहले आपका ऐसा होगा, दिमाग में कोई चीज़ लगेगी नहीं। जैसे अभी कोई बहुत ही इमोशनल है, तो 9 महीने की जर्नी में, जैसे मान लो कि हस्बैंड के साथ ऐसा हुआ कि हस्बैंड ने टाइम नहीं दिया, या आप उस वक्त बहुत इमोशनल हो, आपको बहुत सारा पेन हो रहा है, आपको ऐसा लगे कि मदर इन लो या कोई फैमिली मेम्बर आपको बहुत पैम्पर करे और कोई नहीं कर रहा है, तो उस वक्त हम इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, कई बार झगड़ा हो जाता है किसी से, कुछ ऐसा हो जाता है। जितना टाइम आप रोओगे, इमोशनल रहोगे, उतना ग्रोथ आपका बेबी का रुक जाएगा, एक्चुअली रुक जाएगा। आप डॉक्टर से पूछ लो, आप इसके बारे में गूगल कर लो, जिसको भी पूछना है पूछ लो। जितना आप इमोशनल जाओगे, बेबी के ग्रोथ में वहाँ पर डिस्टर्बेंस आएगा, वो वहाँ पर रुकेगा। अगर आपको वो नहीं चाहिए, आपको ये पता है कि आपके बेबी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना है? जैसे ही मेंटली ऐसा हुआ, इमोशनली ब्रेकडाउन आया, आप रोना शुरू करते हो या कोई ऐसी चीज़ की है, बस आप अपने आप को उसमें से बाहर नहीं ला सकते हो, सीधा विजुअलाइज करो आपका बेबी आपके साथ है। जितना आप दुखी हो रहे हैं, उसका ग्रोथ वहाँ पर रुक रहा है। उसके ऊपर हाथ रखो एंड आपको उसके लिए जीना है, क्योंकि माँ ही ऐसी व्यक्ति है जो बच्चे के लिए अपने आप को भूल सकती है। पिता भी करता है, पर माँ के जितना नहीं, क्योंकि जो बच्चा पैदा हो रहा है वो माँ के अंदर है। अपने पास, अपने अंदर, अपने शरीर से निकलना और किसी के शरीर से निकली हुई चीज़ या इंसान को हमारे हाथ में लेना, दोनों बातें काफ़ी डिफरेंट है, इमोशंस जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों को वो चीज़ ध्यान में रखनी है कि जैसे इमोशनल हो, माइंड को ट्रेन करो, नहीं मेरे बच्चे के लिए मुझे इसमें से बाहर निकलना है। उसके लिए क्या है रेमेडी? आई एम पीसफुल, आई एम हेल्दी, आई एम एनर्जेटिक, आई लव यू, तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो हम घूमने चलते हैं, चलो हम ये खाते हैं, चलो हम वो खाते हैं, कोई टेंशन नहीं। अपने लिए प्लानिंग करो, पूरा टाइम सेलिब्रेशन। 9 महीने के अंदर अगर आपके परिवार में से कोई आपको रोक टोक लगा रहा है कि ये मत करो वो मत करो, आपको प्यार से बिठा के बोलना है कि ये 9 महीने मुझे बख्श दो, उसके बाद आप जो बोलोगे हम करेंगे। 9 महीने मैं बोलूँगी वैसा होगा, क्योंकि अब सवाल मेरे अंदर जो बच्चा है उसका है, मेरा नहीं है, ये हम सबका है। ऐसे करके आपको अपना प्लान डिजाइन करना है, माइंड सेट करना है कि मुझे नेगेटिविटी ये सबसे दूर रहना है। अगर आपको लगे कि आपके वहाँ पर कोई गेस्ट आया है और वो नेगेटिव है, उसके ऑरा से कई बार होता है, जैसे मैं नेगेटिव पर्सन हूँ और मेरे साथ बैठो तब मुझे रेजिस्ट नहीं कर पाओगे, आपके साथ कब ये जाए या कब मैं इससे दूर हो जाऊँ। कई बार ऐसा है, आप बहुत पॉजिटिव अगर मैं हूँ तो आपका ऐसा लगेगा और थोड़ा बैठो ना, अच्छा लग रहा है आपके साथ। ऑरा मैटर्स, सेम वे आपका भी ऑरा वर्क करना है, तो आपको आपके ऑरा पे वर्क करना है। ऑरा किस तरह से बनता है? आपकी सोच से, द वे यू आर लिविंग, द वे यू आर थिंकिंग। तो आपको अपनी सोच पे वर्क करना है, वैसे आपका ऑरा डेवलप होगा। अगर आपको लगे कि कोई आपको नेगेटिव कर रहा है, उसकी वजह से आप नेगेटिव हो जाते हो, तो आपको उस इंसान से दूर हो जाना है। दूर हो जाना है मतलब आप किसी को नकार तो नहीं सकते, आप अपने माइंड को अभी ट्रेन नहीं कर पाए हो कि नेगेटिव पर्सन के साथ रहकर भी आप पॉजिटिव कैसे रहोगे। तो आपको क्या करना है,
उनको पानी पिलाना है, खाना खिलाना है, कुछ भी करना है तो वो कर लिया, फिर आपको वहाँ से चले जाना है कि मुझे जाना पड़ेगा। उस जगह पे आपको ज़्यादा देर तक नहीं रहना है। अगर घर के अंदर बहुत सारा गेस्ट इकट्ठा हुए और वो लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें करते हैं, क्योंकि आपका बच्चे का हियरिंग कैपेसिटी जो है उसको अगर आपको अच्छा ग्रो करना है या उसको पैम्पर करना है, उसको अच्छे से संभालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा नॉइजी चीज़ें यूज़ नहीं करनी। मिक्सचर, उसकी जो आवाज़ आती है मिक्सी, आप यहाँ पर चलाते हैं, आपको वो जितना सुनाई देता है उससे 100 टाइम्स ज़्यादा उसको सुनाई देता है। अब अगर आप कोई गाना एकदम जोर से लाउड स्पीकर इस रूम में लगा देगा तो आप कितनी देर तक उसको बर्दाश्त करेंगे? थोड़ी देर में आप तंग आ जाओगे। और फिर आपको स्पीकर के पास बिठा देंगे तो आपका हियरिंग कैपेसिटी कम हो गया है। अब आप बाहर जाओ, अब सब कुछ बंद हो गया है, अब कोई धीरे से भी बोलेगा ना आपको नहीं सुनाई देगा, कोई जोर से बोलेगा तब जाके आपको सुनाई देगा। और यही चीज़ अगर रिपीटेडली होगी तो वो चीज़ हियरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो आज आप सब लोग देखेंगे, सब लोग क्या करते हैं, ईयरबड्स लगा के रखते हैं और लाउड म्यूजिक सुनते हैं। ऐसा करते 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 उनकी हियरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, उनका ध्यान भी नहीं लगता है। अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो आपका बच्चा भी यही करेगा। सो आपको उसको अवॉइड करना है। ट्रेन योर माइंड कि गैजेट्स से दूर रहे। जैसे आपका मोबाइल आपके पास अभी है, अभी इसमें इंटरनेट चालू हो, अब कितनी डिस्टेंस पे है आपका मोबाइल, अभी यहाँ पर होना चाहिए तो चले। हम पूरा टाइम हमारे पर्स में या हमारे बाजू में हाथ में ऐसे रखते हैं, ये बच्चे के ग्रोथ के लिए बहुत 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 ही नुकसान करता है। तो आपके माइंड को आपको सेट करना है कि मुझे इंटरनेट यूज़ नहीं करना है। जैसे आपको कभी कोई चीज़ देखनी पड़े, जैसे टाइम आपको ऐसे बोला कि स्टोरी सुनो या ऐसा, तो हमें नहीं आता, बुक पढ़ने की आदत नहीं है और हमें ऑनलाइन सुनना है, तो क्या करेंगे, उसी टाइम पे हम इंटरनेट चलाएंगे, रखेंगे, उससे थोड़ा दूर बैठेंगे, वो चीज़ हो गई, बंद करके अपने काम में मस्त। फ़ोन से हो सके उतना दूर रहो, क्या लुट जाएगा। अगर आप बिजनेस वूमन हो या जॉब करते हो तो प्रेगनेंसी के लिए डूज एंड डोंट्स होते हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हो। जैसे मैं फ़ोन बंद नहीं कर सकती, अगर मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ तो मैं क्या करूँगी, तो मैं अपना ये काम छोड़ नहीं पाऊँगी, तो मुझे क्या करना है, तो मैक्सिमम मेरे से दूर रखना है फ़ोन। और अगर मुझे यूज़ करना है तो ईयरफोन लगाना है, और कौन सा, हैंड्स फ्री वाला नहीं, वायर से कनेक्ट करके ही आप यूज़ करेंगे। कोई भी गैजेट, स्मार्ट वॉच बिल्कुल नहीं पहननी। वो सारे रेडिएशंस, जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप गोद में रख के हम काम करते हैं, कभी नहीं करना चाहिए, और प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल नहीं। ये टेबल पे रखा हुआ है, हमने काम किया, हटाओ उसको, जितना हो सके उतना कम। लैपटॉप पे काम करने की वजह आपको क्या करना है, पीसी यूज़ करना है, कंप्यूटर, ठीक है, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। माइंड को जितना ट्रेन करोगे, जिस तरह से ट्रेन करोगे, उसी तरह से आपका बच्चा अंदर ट्रेन हो रहा है। जो चीज़ आप कर रहे हो वैसा ही आपका बच्चा हो रहा है। तो अगर आप अपने आप को आज जाके स्कैन करना कि आपकी ऐसी कौन सी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी बात नहीं कर रही हूँ कि नेचर या आपकी कोई बीमारी, उसकी बात नहीं कर रही। आप अपनी लाइफ को भी चेक करना कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। वो रिलेशन को लेके भी हो सकता है, अचीवमेंट्स को लेकर भी हो सकता है, जर्नी को लेके भी हो सकता है। वो सब कर्म है। तो कर्म कैसे बनते हैं, ये स्पिरिचुअल बात है बट साइंटिफिक है। आपकी लाइफ अलग है, इनकी लाइफ अलग है, आपकी लाइफ भी अलग है, सबकी लाइफ अलग है। क्यों? जो आप करते हो, जो सोचते हो, वैसे आपकी लाइफ बनती जाती है। तो आज आप देखना कि अगर आपकी लाइफ में कुछ हो रहा है, वो आपको नहीं चाहिए, आपके बच्चे में वो नहीं चाहिए, तो आज से अभी से आपके थॉट प्रोसेसेस एंड वे ऑफ लिविंग चेंज करने के लिए माइंड को ट्रेन करना शुरू करना। अगर इसके बारे में आपको कोई गाइडलाइन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, अर्चना मैम को कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे भी मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, कला सूर्य फाउंडेशन, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आपको स्पिरिचुअल वे पर कोई भी ट्रीटमेंट चाहिए, जैसे कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो, मैं क्या करूँ, मैं इसमें से बाहर ही नहीं आ पाती, तो कोई ऐसा चाहिए कि जो आपको ट्रेन करे उसके लिए। अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है, आपको हेल्प चाहिए, तो आप एनी टाइम कॉल कर सकते हो। मुझे बहुत सारे लेडीज़ कॉल करते हैं, मैं उनका फ़ोन पे ही कोई भी प्रॉब्लम होता है तो सॉल्व करने में मदद करती हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी कोई चीज़ की तो हम ऐसे अगर कोई सेमिनार भी कर सकते हैं, आपके लिए कोई ट्रेनिंग सेशन भी रख सकते हैं। आज जनरल सेशन है। उसके बाद है वर्क ऑन योर लिविंग स्पेस। अभी आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, अभी आप 1 घंटा बैठ के चले जाएंगे, पर आपके घर के अंदर तो आप रह रहे हो, तो आपके घर के अंदर आप रह रहे हो, जितने लोग रहते हैं
उनकी एनर्जी वो सारी चीज़ों पे वर्क करती है। ऐसा हमने सुना होगा कि ये जो चीज़ें हैं जैसे गाड़ी है, लैपटॉप है, फ़ोन है, उनके साथ भी हमारे सेंटिमेंट काम करते हैं, उन पे भी सेंटिमेंट काम करते हैं, भले ये वस्तु है। क्यों? क्योंकि जिस जगह पे हम बैठे वहाँ पर हमारा ऑरा है, हमारा थिंकिंग है। तो आप देखना कि हम मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर एक शांति, एक सुकून महसूस करते हैं। अब बस स्मशान में जाएंगे तो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि स्मशान के अंदर सब लोग दुखी होते हैं, रोते हैं, मतलब वहाँ पर सारी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं। और मंदिर में क्या हो रहा है? आरती हो रही है, चैंटिंग हो रहा है, श्लोक का, मंत्र का। आप वहाँ पर जाते हैं तो अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं, खुशी मांगते हैं भगवान से। आपको वहाँ पर ये फीलिंग आता है कि मैं यहाँ पर आई, मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, मुझे वहाँ से कुछ ऐसा मिलेगा कि मेरी लाइफ में मिरेकल हो जाएगा। मतलब माइंड में ये थॉट चलता है, इसलिए वहाँ पर पवित्र एटमोसफियर क्रिएट हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। अब हमारे घर को हमें मंदिर बनाना है या स्मशान हमारे हाथ में, तो वर्क ऑन योर लिविंग स्पेस, मतलब आप जिस जगह पे बैठते हो, आप वहाँ पर जैसा सोचोगे वहाँ पर एनर्जी वैसी होगी। अब उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बता सकती हूँ। जैसे कि आपका एक लिविंग रूम है, आप वहाँ पर बहुत बैठते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, सबके थॉट्स पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे परिवार में 4 सदस्य रह रहे हैं, 2 जन बहुत पॉजिटिव है, 2 जन बहुत नेगेटिव है। हर परिवार में एक जन तो ऐसा होता ही है जो पूरे परिवार को नचाता है, चाहे वो मतलब उनके नेचर के हिसाब से, चाहे वो बिना बोले भी सबको डिस्टर्ब कर दे, कुछ भी। एक जन तो ऐसा मिलेगा ही आपको, चाहे वो बच्चे के रूप में हो, बुजुर्ग के रूप में हो, या यंग जनरेशन का कोई भी हो। तो आपको क्या करना है, वो चीज को आपकी थॉट से ओवरलैप करना है। वहां पर आप जितना भी पॉजिटिव सोचोगे, वो नेगेटिविटी वहां से वॉश आउट होती जाएगी। और आपके लिविंग रूम में, आपके जहाँ पर बैठ के आपको काम करना है, वहां पर आप एक प्लांट लगा सकते हो, इंडोर प्लांट लगा सकते हो। उससे एक बेनिफिट ये होगा कि वहां पर एक लाइवलीनेस आ जाएगा। आपको वो देख के एक आंखों को ठंडक मिलेगी, एक सुकून मिलेगा। आप देखना, प्लांट्स के बीच में जाओगे, ग्रीनरी के बीच में जाओगे, आपके माइंड को अच्छा लगेगा, वहाँ का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा। आप ये कर सकते हो। और दूसरा, वहाँ पर आप जब भी बैठते हो, दिन में ज़्यादा नहीं तो 30 मिनट या 1 घंटा आपकी पसंद का म्यूजिक सुनो। ऐसे नहीं बोल रही किसी भगवान के गाने सुनो, अपनी पसंद का कोई भी म्यूजिक सुनो, और उससे आपका माइंड पॉजिटिव होगा। जैसे माइंड पॉजिटिव होगा, लिविंग स्पेस, किचन में काम कर रहे हो तो आपको पॉजिटिव वे पे सोचते सोचते खाना बनाना है। सबको पता होगा कि जैसा सोचते सोचते खाना बनाओगे वैसा ही खाना होगा। अगर आप दुखी मन से खाना बनाओगे तो उसमें दुख होगा। ये बहुत सारा, ज़्यादा मैं लंबा नहीं खींच रही, पर उससे आपको एक हिंट मिल जाएगी कि परिवार में अगर सबको पॉजिटिव करना है तो जो खाना, अगर आपके घर पे कोई कुक आके बनाता है या आपके घर का कोई दूसरा सदस्य बनाता है, तो आपको क्या करना है कि वो खाना जब भी टेबल पे आता है, तो टेबल पे लाने के बाद, जैसे हम भोग चढ़ाते हैं, पहले सिस्टम होता था कि भगवान को खाना लगाने के बाद ही खाना है। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान को खाना लगाते हैं तो आस्था से उनको बोलते हैं कि आप ये खाना ग्रहण करो, ये प्रसाद हो गया। जैसे भगवान को लगाया, प्रसाद हो गया। प्रसाद मीन्स पॉजिटिविटी, और फिर वो प्रसाद हम खाने में मिलाते हैं। ये सिस्टम अभी चला गया। तो हमें क्या करना है, खाना टेबल पे लाना है। कोई भी बनाता है, आप उस खाने के सामने ऐसे देखेंगे, फिर आपको ये सोचना है कि भगवान का आशीर्वाद इसमें मिल रहा है, ये प्रसाद बन गया है। और फिर आप जो चाहते हो, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम एनर्जेटिक, या हमारे घर में सब एक साथ में बहुत खुशी से रह रहे हैं, सबका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा है, और मेरा बेबी भी इसे एंजॉय कर रहा है खाने को। ऐसे करके आपने कोई भी अपना जो भी सोच डाला वो खाने में मिल गया। अब जो भी ये खाना खाएगा उसको वो पॉजिटिव वाइब्स जाएंगे। तो आप ये सबके लिए कर सकते हो, और स्पेशली अपने बच्चे के लिए। जब भी आप खाना प्लेट में लेते हो, पानी पीते हो, मेडिसिन लेते हो, कुछ भी लेते हो, मुंह के अंदर कोई भी चीज़ रखते हो तो उसको वाइब्रेशन दिए बिना नहीं लेना है। क्योंकि जैसे मैंने आपको ये बॉटल पानी दिया, ये बॉटल जहाँ से भी आया है उसमें उसके वाइब्स हैं। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि पानी को आप जैसी एनर्जी दोगे वो उसको ग्रहण करता है। वो एनर्जी जब आप पीते हो तो आपका बॉडी ग्रहण करता है, और जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर वो एनर्जी जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव, आपके थॉट प्रोसेस पे वो वर्क करता है, एंड जो आपका थॉट प्रोसेस होता है वैसा बेबी बनेगा। तो ये मैं सिर्फ प्रेगनेंसी से रिलेटेड बात कर रही हूँ, पर यही चीज़ एप्लीकेबल है सबके लिए। तो आप जब भी पानी पिए, खाना खाए, मेडिसिन ले, उसको वाइब्रेशन दे, ये भगवान का प्रसाद है। बस 5 सेकेंड लगेंगे, ये भगवान का प्रसाद है,
एंड मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत एनर्जेटिक, और खाना खा लिया, पानी पी लिया, मेडिसिन ले ली। देखो कैसा मिरेकल होता है। आप ये रेगुलर करना शुरू करोगे ना, आपको जैसे आज से शुरू किया पूरे दिन में, तो धीरे 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 आपकी हैबिट डेवलप होगी। अभी आप पानी पी रहे हो, भूल गए, अरे मैंने वाइब्रेशन नहीं दिया, रुक जाओ, वाइब्रेशन दो फिर पियो। हैबिट डेवलप करो, वर्क ऑन योर माइंड, वर्क ऑन योर लिविंग स्पेस। तो ये वही हुआ, तो वैसे आपका हो जाएगा हैबिट। अभी है वर्क ऑन योर कॉन्टेक्ट, जो मैंने बोला ना, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी एंड नेगेटिव। किन लोगों से रिश्ता रखना है, किन लोगों से नहीं रखना है, ये आपके हाथ में है। बट जब बच्चे की बात आ रही है तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट 9 महीने तक आपको अपना कॉन्टैक्ट चेक करना है। मुझे किन लोगों से मिलना है, किन लोगों से नहीं मिलना है। जब हम लोग बीमार होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अलग हो जाते हैं कि भाई मुझे थोड़े दिन आराम की ज़रूरत है, मैं अभी इतने दिन किसी से मिलूंगी नहीं, मैं काम नहीं करूंगी, होता है कि नहीं। तो जब आप प्रेग्नेंट है, 9 महीने आप ऐसे एक बच्चे को बना रहे हो, जैसे वो मिट्टी का घड़ा बनाते हैं तो कितना कंसंट्रेशन करना पड़ता है, 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा जितना भी लगता है, आप किसी से बात नहीं कर सकते, उस पर ही फोकस करना पड़ेगा। देख देख के भाई ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, इसको ठीक करते, पर बच्चे को ठीक नहीं कर पाएंगे, वो तो वो फेंक भी देगा, बच्चे को नहीं फेंक पाएंगे। तो ये 9 महीने आपको किससे नहीं मिलना है, पहले उसका लिस्ट बनाओ, एंड लिटरली उनसे नहीं मिलना है। किनसे मिलना है, इनसे मिलके आपको बहुत अच्छा लगता है, कुछ सीखने मिलता है, तो उनको मिलो, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, जितना भी मिलना है उनसे ज़्यादा मिलो। तो ये है वर्क ऑन योर कॉन्टेक्ट। ये चीज़ सच में आप करना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। सारी नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी यहाँ से आती है, चाहे वो बात करनी है फ़ोन से या ऐसे पर्सनली फेस टू फेस, यहीं से आएगी सारी एनर्जी पे वर्क करो। उसके बाद है वर्क ऑन योर एक्टिविटीज़। अब आप लोग एक्टिविटीज़ क्या करते हो, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगे। प्रेगनेंसी में किसी का ऐसा होगा कि बेबी नीचे आ गया, बेबी बम, तो वहाँ पर कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकते, उनको बेड रेस्ट करना पड़ेगा, कुछ ऐसे कुछ ना कुछ तो होता रहता है, किसी को हर चीज़ अलग होती है। कोई ऐसा होता है 9 मंथ तक वो डांस कर सकता है, डांस स्कूल चल, जैसे मैं डांस टीचर हूँ और मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, तो मैं डांस करते करते मुझे प्रेगनेंसी का पेन होगा और मुझे एडमिट होना पड़ेगा। सबका अलग अलग होता है, तो आपको उस हिसाब के आपकी एक्टिविटी डिज़ाइन करनी है। स्ट्रेचिंग सबके लिए ज़रूरी है, आराम करना है, सब कुछ है, और कुछ एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, कुछ करनी है, वो सीख लो, वो ही करना है। जैसे योग, आपको योग का अभ्यास करना है। योग का अभ्यास क्यों करना है, मैंने आपको पहले बोला, आपके माइंड पे वर्क करना है, मेडिटेशन करना है। वो ऐसे नहीं होगा, वो हठ योग जो है, जैसे हम सूर्य नमस्कार करते हैं और दूसरे सारे आसन करते हैं, उससे आपकी